Hello friends, today we are going to learn English workshop in a class of their own. Let's read the question first. Read aloud the two conversation in this part. Read aloud the two conversations in this part. इस पार्ट में दो कन्वर्सेशन दिए हैं, वो आपको रीड करने हैं बड़ी आवाज़ में. तो फर्स्ट, बिटवीन मिसेस देसाई एंड हर स्टूडेंट्स एंड बिटवीन अस्मिता एंड स्नेहल. तो ऊपर के मिसेस देसाई और स्टूडेंट इनके बीच में का जो कन्वर्सेशन हुआ है वो भी आपको रीड करना है. एंड अस्मिता एंड स्नेहल इनके भी बीच में जो भी कन्वर्सेशन हुआ है वो भी आपको रीड करना है. ठीक है. सेकेंड जो क्वेश्चन है, से वेदर द फॉलोइंग सेंटेंसेस आर राइट और रॉन्ग. करेक्ट द रॉन्ग वन एंड राइट देम डाउन. ओके. First, there are both boys and girls in the class. So, this is correct sentence. So, you should tick. They never quarrel. It is totally wrong. They always quarrel with each other. Okay. So, this is wrong. Their teachers never shout at them. It's also totally wrong. Their teachers always shout at them. Wrong. There was no unity among the students in the class. This also totally wrong sentence. There was unity among the students in the class. Sushmita spoke to the teacher in a low, soft voice. Correct. Asmita is telling us their story. This is wrong. Okay. Now question third, discuss the following questions. Discuss the following questions. A. Why does Mrs. Desai's class like her? जो मिसेस देसाई का क्लास था उनको क्यों लाइक करता था? वो मिसेस देसाई क्लास को क्यों अच्छी लगती थी? ओके. मिसेस देसाई मैम क्लास को क्यों अच्छी लगती थी? तो इसका आंसर है मिसेस देसाई क्लास लाइक्स हर बिकॉज शी इज प्राउड ऑफ द क्लास इन स्पाइट ऑफ द थिंग्स दैट टीचर्स वरी अबाउट. शी लाइक्स देयर यूनिटी. शी एड्रेसेस देम रिस्पेक्टफुली एंड लविंगली. शी वॉज सॉरी फॉर देयर पुअर रिजल्ट बट डिडंट स्कोल्ड और पनिश देम. She still wanted to be proud of them. The class liked this kind attitude of their teacher. Okay. मिसेस देसाई का जो क्लास था वो बहुत लाइक करता था मिसेस देसाई को, क्योंकि उनको अपने क्लास पे बहुत गर्व था और वो स्टूडेंट्स की केयर भी करती थी और उनको क्लास की जो यूनिटी थी, एकता, वो भी पसंद आती थी और वो रिस्पेक्टफुली लविंगली बोलती थी सबको. रिज़ल्ट बहुत पुअर आया तो भी स्कोल्ड नहीं करती थी, पनिश नहीं करती थी. तो पूरा क्लास उनके इस एटीट्यूड पे
उनका जो एटीट्यूड था वो अच्छा लगता था पूरे क्लास को। क्वेश्चन सेकेंड, शुड मिसेस देसाई हैव बीन एंग्री और अनहैप्पी? शुड मिसेस देसाई हैव बीन एंग्री और अनहैप्पी? Yes, because students of her class did not do well in the unit test and some of had not appeared for the test. आपको मालूम है मिसेस देसाई बहुत दुखी थी, उनको बहुत एंग्री होना था क्योंकि बहुत से स्टूडेंट टेस्ट में फेल हो गए थे और कुछ स्टूडेंट तो क्लास में एब्सेंट थे। तो जो मिसेस देसाई है उनको एंग्री होना ही था या दुखी होना ही था। नाउ क्वेश्चन फोर्थ, यूज द इंफॉर्मेशन टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंसेस यूजिंग द फॉलोइंग एडवर्ब्स। The first adverb is always, B regularly, C sometimes, and D never। तो इस एडवर्ब को लेके आपको एक सबका एक एक दो दो मीनिंगफुल सेंटेंसेस बनाने हैं, ठीक है। तो always पहले, I always study in the morning, I always sleep at night, I always sleep at 10 at night। ओके, ये हो गया always के। regularly brush my teeth twice in a day, I regularly brush my teeth twice in a day, I do my homework regularly, I do my homework regularly। Next है sometimes, sometimes I help my mother in the kitchen, sometimes I eat ice cream with my family। Never, I never lie to my parents and I never go out with friends without permission of my parents। Okay, now next question, write the following words in the appropriate places to complete the following tables: itself, herself, myself, yourselves, ourselves, yourself and himself। Okay, I को बैठेगा माई सेल्फ, यू को यूर सेल्फ, वी को आवर सेल्फ, यू को यूर सेल्फ, ही को हिम सेल्फ, शी हर सेल्फ, इट सेल्फ और दे को देम सेल्व्स। ओके, इट्स सो सिंपल। नाउ लास्ट क्वेश्चन, say the alphabet from A to Z। There are 26 letters in the alphabet। Them into groups of rhymed letters। For example, Q, U, W are rhyming letters that end with U sound। Did you find the rhyming letter of each of 26 letter? आपको क्या करना है, जो भी इंग्लिश के अल्फ़ाबेट है 26 उसमें से एक दूसरे को राइम होने वाले जो लेटर्स है उनका ग्रुप करना है। जैसे कि नीचे आंसर देखो, A B C D E G I P T V, इसका सबका एक ग्रुप है। J K देखो प्रोनाउंसिएशन सेम है। S X है ना, Q U W ऐसे। तो आप ये सब लिख सकते हैं। तो ये इंग्लिश
वर्कशॉप ख़त्म हुआ. You should write down all the English workshop in your notebook and post photograph on our WhatsApp group. Thank you.